Hello everyone, welcome to our channel. So today we are going to read about Chola Empire. लेकिन इससे पहले आप प्लीज लास्ट वीडियो देख लीजिए because this video is the continuation of that only. In this particular video, of course, we are going to cover the NCERT. हमारा जो चैप्टर रह गया था क्लास 7th चैप्टर 2, we are going to complete that. But उसके साथ साथ I am going to provide you some basic information about the Chola dynasty, which is very interesting. Just read it like a story and you will learn it. So for this, please watch till end, stay connected. Let's begin. फर्स्ट हम जानते हैं कि टाइमलाइन क्या है. सो बेसिकली चोला एम्पायर को 3 लिनेजेस में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है फॉर द स्टडी पर्पसेस. ओके, अर्ली चोलास, मीडिएवल चोलास एंड लेटर चोलास. अर्ली चोलास के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है एंड इट हैज़ एन एब्सेंस इन द संगम लिटरेचर. संगम लिटरेचर एक तमिल लिटरेचर है जिसमें इनकी डायनेस्टी, रूलर्स, लैंड ग्रांट सबके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, बट not much provided information can be found in the Sangam literature about the early Cholas. लेकिन इनके 3 important रूलर हैं जिनको अक्सर हिस्ट्री में पढ़ा जाता है: कराईकाल चोला, नीलन किली, नेंदुन किली एंड कोशिंगनन. कराईकाल चोला इनमें से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रूलर माने जाते हैं. ऑलराइट, सो देयर वाज अर्ली चोलास, बट अर्ली चोलास के आने के बाद क्या हुआ, जो चोला एम्पायर था वो आपका पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया. इट ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट. Alright, so there was a sharp decline after the early Cholas. They almost disappeared. Then they revived under medieval Cholas. तो कैसे रिवाइवल हुआ and who was the ruler जिसके अंडर ये रिवाइवल हुआ and then the dynasty continued to rule over centuries. So now we are going to see that. Okay, so there was the revival of Chola dynasty. Early Chola kingdom faded into darkness after 300 CE. 300 CE के बाद जो चोला किंगडम था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था. It almost disappeared. All right. So this dark age is said to have been caused by the invasion of Kalabars. ऐसा माना जाता है कि जो कालाबर्स थे उन्होंने अटैक्स किए which led to the decline of Chola empire. बट ये कालाबर्स कौन थे? सो कालाबर्स बेसिकली द रूलर्स हु रूल्ड तमिल रीजन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, तो इन्होंने करीब 3rd सेंचुरी टू 6th सेंचुरी के बीच में पूरे तमिल रीजन को रूल किया था कालाबर्स ने, एंड दे हैड दिस सीरीज ऑफ इन्वेजन्स व्हिच लेड टू द डिसअपियरेंस ऑफ चोला एम्पायर. दिस डार्क एज केम टू एन एंड विद द ascendancy of the Pandyas and Pallavas. So Pandyas and Pallavas, these were another 2 dynasties which ruled South India. उन्होंने कालाबार्स को हरा दिया in 590 CE and then they established their own rule. So during this period, Cholas migrated from their native country to the Telugu lands. जो चोलास ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गए थे, दे मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, वो सब तेलुगु लैंड्स में आकर रहने लगे और इन्हें तेलुगु चोलास बोला गया. So they ruled from there as chieftains of Pallavas, यानी कि वो पालवास के सबऑर्डिनेट्स बनकर ही उन्होंने रूल किया. But then comes the विजयलया चोला. So विजयलया चोला ने क्या किया, पालवास एंड पांड्यास के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होने लगे for the political supremacy of South India. Both these dynasty wanted to rule South India. All right. So Vijayala Chola ने इस opportunity का फायदा उठाया and he defeated both Pandyas and Pallavas and became the ruler of Thanjavur. So basically Vijayala Chola established the new capital of Thanjavur and the surrounding areas. अब यहाँ से चोला का revival was at its peak and they become stronger only. ठीक है. So eventually Pallavas were wiped out entirely of the Thanjavur state. Pallavas पूरी तरीके से खत्म हो गए. विजयला चोला ने जो थंजावुर था वो एलंगो मुथरैयर, जो कि एक मुथरैयर डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, उनसे कंकर किया था and then he made it its capital. So Thanjavur became the center of political administration of the Chola empire. After Vijayalaya, ऑफ कोर्स अ लीनिएज स्टार्टेड. इनको मीडिएवल चोलास बोलते हैं. अभी जैसे हमने अर्ली चोलास पढ़ा, बट मीडिएवल चोलास के बारे में आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन
मिल सकती है from the sources, from the Sangam literature as well. So Aditya I was the son of Vichalya. Aditya I was the son and he was a very effective leader. He was a very influential leader. इनके टाइम पर भी Chola dynasty rules. Okay. Then Parantaka I and Kennara Davan. These are the sons of Aditya I. Now I want to tell you a small thing कि ये जो रूलर्स हैं इनके और भी बेटे थे, सिर्फ 1 2 3 ऐसे नहीं थे, बट दोज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, सो वी आर गोइंग टू cover the important names only so that it becomes easier for you to remember and it is enough to understand the basic idea of the Chola dynasty. All right. Then Aditya I के जो sons थे, they were Parantaka I and Kannara Davan. Okay, he ruled and again he was a very influential leader. फिर परंतका सेकेंड रूल्ड. आदित्य वन और परंतका सेकेंड के बीच में और भी रूलर्स आए थे बट अगेन दे आर नॉट इम्पोर्टेंट. परंतका सेकेंड के सन्स आदित्य करिकालन एंड राजा वन. राजा वन के बेटे राजेंद्र वन. सो राजा वन एंड राजेंद्र वन, दीज टू आर कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल रूलर्स of the Chola dynasty. Chola dynasty was at its peak during their rule. Okay, Raja I and Rajendra I, they constructed several temples. They granted lands to the Brahmins. इन्होंने बहुत ज़्यादा contribution किया and they expanded Chola dynasty to a very much larger area. Okay, इनके बारे में NCERT में भी given है जो कि हम end में देखेंगे, तो please end तक इस वीडियो को देखिए. It is very important and the information that we are getting right now, this is also very important to understand the basic background of the dynasty. Otherwise समझना मुश्किल हो जाएगा. Then राजेंद्र वन के जो बेटे थे राजा वन, राजेंद्र सेकेंड एंड वीरा राजेंद्र, they also ruled, but Rajendra I is considered as the most influential leader of medieval Cholas. All right. So this is the basic timeline of medieval Cholas. आप pause करके एक बार इनका एक आइडिया ले सकते हैं कि किन्ने कब तक रूल किया था. All right. So later Cholas. अभी क्या हुआ कि वीरा राजेंद्र, हमने देखा कि राजेंद्र I के जो बेटे थे वीरा राजेंद्र चोला, उनके सन अथे राजेंद्र चोला ने रूल किया बट ही वॉज assassinated in a very shorter period of time. Then after him marriage alliances between eastern Chalukyas began with the Raja's reign. ठीक है, तो राजा की जो बेटी थी उनकी शादी चालुक्य प्रिंस विमलादित्य के साथ हो गई. राजेंद्र चोला की जो बेटी थी अमंगा देवी, उनकी शादी राजा नारेंद्र के साथ हो गई, हु वाज अ ईस्टर्न चालुक्य किंग. फिर इनके बेटे कुलोथुंगा चोला ने रूल करना शुरू किया, विच बिगेन द रेन ऑफ लेटर चोलास. ऑलराइट, कुलोथुंगा चोला, द सन ऑफ अमंगा देवी एंड राजा नारेंद्र, ascended the Chola throne, beginning the later Chola dynasty. Clear? So later Cholas का जो रूल शुरू हुआ, it started with the married alliances with eastern Chalukyas. Okay, so this is basic timeline. आपको बस इतना पता होना चाहिए कि later Cholas की शुरुआत किसने की, उनका नाम है कुलोथुंगा चोला. All right. So there were other capable leaders as well as Kulothunga I, उनके son Vikrama Chola, other successors like Raja II, Rajadhiraja II, Kulothunga III, Elam and Kataha. But this lineage was comparatively weaker as compared to early and medieval Cholas. Weak था but still उनका territorial intact काफी strong था. They hold on to their territories. And of course it expanded, but comparatively it was a little weaker. All right. Then started the decline of the Cholas. That was the आपका later Cholas के medieval Cholas के time पे it was at its peak. Later Cholas के time पे भी also it worked well. But then the decline started with the resurgence of Pandyan dynasty and unity by Hoysalas. There was continuous invasions by the Hoysalas. Pandyan dynasty also rose into the power, which led to the decline of Cholas. All right. Rajendra Chola III was the last ruler of Chola dynasty who ruled from 1246 to 1279 CE.
So this was it. This was the whole story of Chola Empire and we have covered the whole story in exactly 10 minutes. आपको इतना पता है तो आप चोलास के बारे में अब आगे कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपके लिए लिटिल ईजी होगा, बिकॉज नाउ यू विल हैव एन इमेज इन योर माइंड, ठीक है, कि कहाँ से शुरुआत हुई, हु वर कैपेबल एंड व्हाट लेड टू द डिक्लाइन. ऑलराइट, नाउ सो अब हम करेंगे एनसीईआरटी का रिमेनिंग पार्ट. एज आई प्रोमिस्ड आई एम गोइंग टू कवर इट. सो अभी आपको इसमें कुछ ज्यादा नया इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ इट. ओके, सो जस्ट लेट्स गिव इट अ क्विक रीड. ओके, so there was a minor chiefly family who were known as Muttarayars and they ruled over the Kaveri Delta region. They were subordinate to the Pallava kings of Kanchipuram. Okay, so they were also subordinates. Vijayalaya, जो कि ancient chiefly family को belong करते हैं of the Cholas, he captured the Kaveri Delta from the Muttarayar in 9th century. Okay, 9th century. Then he built the town of Thanjavur and a temple for goddess Nishumbha Sudini there. Okay, so he built a capital and a temple Nishumbha Sudini there. Alright, so here begins the रिवाइवल ऑफ चोला डायनेस्टी. तो इंपीरियल चोला डायनेस्टी की शुरुआत यही मानी जाती है दैट इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेन ऑफ विजालया चोला. ऑलराइट, फिर उसके बाद इनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने नेबरिंग रीजन्स को भी कंकर किया. इट ग्रू इन साइज एंड पावर. पांड्यन एंड पालवास टेरिटरीज वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम. पहले जो रूल करती थी अब उनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया, उनको उसका चोला डायनेस्टी का पार्ट बना दिया गया. Raja 1 is considered the most powerful ruler as I told you earlier and he became king in the 985 CE. Alright, and he expanded control over most of these areas. फिर इनके जो बेटे थे राजेंद्र वर, उन्होंने उनकी लेगेसी को कंटिन्यू किया एंड ही एक्सपेंडेड द एरिया इवन मोर. ऑलराइट, ही इवन रेडेड गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. तो हम ये कह सकते हैं कि राजेंद्र वन के टाइम पर चोला डायनेस्टी एक्सपेंडेड टू साउथ एशियन रीजन. किनके टाइम पर? राजे के सन राजेंद्र वन के टाइम पर. ऑलराइट, इट एक्सपेंडेड इवन मोर but these two rulers were the most powerful. Okay, temples were built as I told you earlier. Splendid temples and bronze sculptures have been found and temples अभी भी जो आज एकदम ऐसे intact खड़े हुए हैं, they are still very very beautiful and geometrically well balanced. Okay, so big temples of Thanjavur and Gangaikonda Cholapuram was built by Raja and Rajendra. ठीक है, तो ये गंगाईकोंडा चोलापुरम का ही एक टेम्पल है, आप देख सकते हैं. इट इज जस्ट द एपिटम ऑफ ब्यूटी. चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियर सेटलमेंट्स व्हिच ग्रो अराउंड देम. एक टेम्पल होता है, उसके अराउंड सेटलमेंट्स ग्रो होते थे. एंड टेम्पल्स वाज नॉट जस्ट द प्लेस ऑफ वर्शिप. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ पूजा होती थी. इट वाज आल्सो अ सेंटर ऑफ इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल, एज यू कैन सी हियर. ठीक है, इट वॉज अ सेंटर ऑफ इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल. सो टेम्पल्स ग्रू एज अ हब for economical life, for socializing. People used to come there, do their basic activities and interact. So temples के साथ साथ if we talk about the rich history of the Chola Empire, bronze images are the most distinctive ones. Okay, bronze images सबसे ज़्यादा finest, they are considered as the finest in the world. Okay, एंड जो इमेजेस होते थे वो जनरली डाइटीज के होते थे, यानी कि देवी देवताओं के होते थे, बट कुछ डिवोटीज के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. ठीक है, एंड दीज हैव बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशंस. ऑलराइट, नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन द एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पार्ट. सो ऑफ कोर्स अभी हमने देखा दैट चोला एम्पायर वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कावेरी डेल्टा. ठीक है, अब कावेरी डेल्टा की क्या होती है? देयर आर सेवरल ब्रांचेस, स्मॉल ब्रांचेस विच क्रिएट्स फर्टाइल एरिया अराउंड इट. उनके अराउंड क्या होता है? फर्टाइल रीजन क्रिएट हो जाता है विच ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी इन एग्रीकल्चर. ओके, so Chola Empire was an agriculturally rich region. Okay, so the river Kaveri branches off to small channels before emptying into Bay of Bengal. कावेरी आपकी कहाँ खाली हो जाती है? ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल. These channels overflow frequently, depositing fertile soils. फर्टाइल सॉइल्स का डिपोजिशन होता है. ऑफ कोर्स आपकी कोई भी रिवर फ्लो कर रही है वो अपने साथ सेवरल सेडिमेंट्स लेकर आती है जिसको वो डिपॉजिट कर देती है. एंड दीज डिपॉजिट्स आर वेरी फर्टाइल इन नेचर. ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है. ओके,
This provides the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. Okay, cultivation of rice was prominent. फिर 5th and 6th century से large scale cultivation began, forest were cleared and जो embankments बनाए गए to prevent the flooding, ठीक है, कैनल्स बनाए गए, डैम्स बनाए गए. सो आप देख सकते हैं that artificial irrigation was also present in the Chola Empire. So this gives us an idea that Chola Empire was actually technologically rich. उन्होंने आर्टिफिशियल एस्टेब्लिशमेंट्स बनाए, आर्टिफिशियल इरिगेशंस को परफॉर्म किया, ठीक है. सो दे वर प्रोग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल. सो इन मेनी केसेस इट वाज नेसेसरी it was necessary to water crops artificially, जिसके लिए huge tanks बनाए गए to collect rainwater. Alright. So these are the types of lands which are given. उससे पहले एक बार हम एडमिनिस्ट्रेशन पे भी नजर डाल लेते हैं. सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स को उर बोला जाता था, ठीक है. सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स वर नोन एज उर एंड दे बिकेम प्रॉस्पेरस. जैसे जैसे आपका इरिगेशन बढ़ा वैसे वैसे ऑफकोर्स उनके जो सेटलमेंट्स थे वो भी इंक्रीज हुए, वो भी प्रॉस्पेरस हुए. एंड ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स नोन एज नाडू, ठीक है. उनको नाडू बोलते थे. इस नाडू में आपके सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन यूज टू टेक प्लेस. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे. रिच पीजेंट्स ऑफ वेलाला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू. वेलाला कास्ट में रिच पीजेंट्स होते थे और वी कैन से दैट रिच पीजेंट्स बिलोंग टू द वेलाला कास्ट. उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती थी एंड दे वर्कड अंडर द सुपरविजन ऑफ Central Chola government. Alright. Chola kings gave some rich landowners titles like Movendavallan. Okay. So आपको एडमिनिस्ट्रेशन में इतना ही याद रखना है that there were settlements of peasants known as Nord. There was a group of villages known as Nadu, and there were Velala peasants who performed administrative powers under Chola rule. ठीक है. और चोला किंग्स इनको क्या बोलते थे? मुविंदवेलन. ऑलराइट. सो आपको बस ये टर्म्स याद रखने हैं, इनके मीनिंग्स याद रखने हैं एंड यू आर डन. These are the types of lands that was granted to ब्राह्मण्स. ओके, आप इनको एक बार पढ़ लीजिए. ब्राह्मण्स को अक्सर लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे और दीज लैंड ग्रांट्स इनको ब्रह्मदेया भी बोलते हैं. दिस इज द अनदर टर्म. ऑलराइट. Each Brahmadeya was looked after by an assembly of sabha of prominent Brahmana landholders. Brahmana landholders होते थे, वो इन ब्रह्मदेया को सुपरवाइज करते थे. वो देखते थे किसको देना है, किसको नहीं देना है. They worked very efficiently और इनके जो डिसीजंस होते थे वो सारे आपको इंस्क्रिप्शंस, इनका रिकॉर्ड आपको इंस्क्रिप्शंस में देखने के लिए मिलेगा. I hope you guys know what inscriptions are. अगर आपको नहीं पता है प्लीज watch the previous videos. I have explained it there. Okay. Inscriptions में सारा रिकॉर्ड होता है. ये आपके रिकॉर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे हम हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं, ठीक है. एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स वर नोन एज नागरम्स. ट्रेडर्स के एसोसिएशंस को नागरम्स बोला जाता था. अभी तक हमने क्या क्या टर्म्स देख लिए? उर, नाडू, ब्रह्मदेया, ठीक है, Velala caste, Velala peasants and Nagrams. Okay, so these are the terms. इधर बस आपको terms याद रखने हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है. उनका meaning of course. So Nagrams also performed administrative functions in towns. सभाs were also organized. जो सभा होती थी उनमें क्या होता था कि एक सभा में several committees होती थी for several purposes. ठीक है. इसमें agriculture हो सकता है या अदर पर्पस भी हो सकते हैं, तो उनके लिए अलग अलग कमिटीज बनाई जाती थी. जिनके लोगों का सिलेक्शन कैसे होता था कि वो उस कमिटी का हिस्सा बनेंगे, उसके लिए होता था कि एक टिकट होता था, उसमें नाम होता था, वो डाल दिया जाता था, फिर एक यंग बॉय को बुलाया जाता था टू पिक द नेम. दैट्स इट. एंड देन द पर्सन वाज एडेड. So this was performed. So this is the procedure that has been mentioned here. All right. So अब एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो कि आपके एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है, तो प्लीज इसको एक बार देख लेते हैं. इन चाइना साइमल्टेनियसली टैंग डायनेस्टी थी जो कि रूल कर रही थी. इनका कैपिटल था जियान और इनके जो ब्यूरोक्रेसी का जो भी एडमिशंस होते थे, they were recruited through an examination. This is the important part. एग्जाम होता था इनके रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है. तो इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट.
Alright, so we are done here. Thank you so much for your time, and I hope आपको clear है. Within 20 minutes we have covered the entire Chola Empire along with the NCERT. So I guess a treat, right? So please do share, like, and subscribe. It's a new initiative and it will be very helpful. Thank you very much. See you in the next class. Bye bye.